Hello guys, welcome to Exam Lexicon YouTube channel. So I've been getting one specific query from many students from our Facebook and Telegram groups, and that query is what can be our strategy and proper timetable to prepare for CAT 2020 starting from zero level and starting from June and July onwards. मतलब अगर कोई स्टूडेंट स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहे देन व्हाट शुड बी हिज रोड मैप, हिज टाइम टेबल, डेली टारगेट्स टू अचीव एंड द स्टडी मटेरियल टू बी यूज्ड. So I made 4 separate videos to cover the detailed strategy for VARC, DILR, quant section and an overall CAT strategy. And in this video we'll be talking all about VARC. So let me start with a brief introduction about myself. My name is Saga and I pursued BTech from VIT University, Tamil Nadu. These are some of my CAT and other MBA entrance exams credentials. I was also an ex-student of IIM Jammu. So first of all, coming to the biggest doubt in everyone's mind, that is it even possible to prepare for CAT starting from scratch from June or July? So my answer to that is yes, definitely. Moreover, you can even score more than 99 percentile if you work smartly, set daily targets for yourself and achieve those targets, and also track your progress on a daily basis. And to strengthen your belief in yourself that yes, it can be done, even if I start from June or July onwards, I have put this snapshot from my own notebook in the strategy videos of all 3 sections. This is the notebook where I used to write summary of daily editorials. So as you can see, this is the first page of my notebook and I wrote my first ever editorial summary on 24th June and still ended up getting this and these. Alright. So there must have been something which I did correctly जिसकी वजह से first attempt में ही I got high percentiles in several exams, also calls from many good colleges and even a few converts as well. So what was my timetable, how many mocks did I take, how I used to track my overall progress, which books और coaching material I used, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. But before we start with anything else, let us first discuss the syllabus of VRC section in detail. So VRC section will contain 34 questions in CAT exam, जिसमें से 24 questions RC के होंगे और 10 questions will be from verbal ability. So आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन. सी लास्ट 3-4 साल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल 34 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली. एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो है उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंसेस, वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, वो आपसे आरसीज के थ्रू ही पूछ लिए जाते हैं. फैक्ट्स, इन्फ्रेंस एंड जजमेंट एक बार कैट 2016 में आया था, उसके बाद से नहीं आया, फिर भी ये आ सकता है. ग्रामर एंड वोकेबुलरी जनरली कैट में नहीं पूछते हैं, फिर भी कैट इज एन अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, तो क्या पता कभी भी पूछ सकते हैं. नाउ द फर्स्ट स्टेप. नाउ यू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, यू नो द सिलेबस. सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन योर प्रिपरेशन, फ्रॉम वेयर शुड यू स्टार्ट. तो आपका पहला स्टेप जो होगा वो होगा टेकिंग ए मॉक. सेक्शनल लेना है या फुल लेंथ लेना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. आप कोई सा भी ले सकते हो, या तो आप वीआरसी सेक्शनल ले लो या आप एक फुल लेंथ टेस्ट ले लो. और ये टेस्ट में आपको मार्क्स की परवाह नहीं करनी है. आपके नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ की. इस टेस्ट से आपको क्या क्या पता चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट टू नो द इंटरफेस. आपका टेस्ट कैसा आता है, वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन कैसे करते हैं, कैसे एमसीक्यूज, कैसे डेटा आपको शो होते हैं, वो सब आपको सारी चीज़ें पता चलेगी. Secondly, we'll get to know the type of questions asked in actual CAT exam and where you stand right now. इससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके कुछ भी मार्क्स आए, लेकिन एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि अभी आपका स्टेटस क्या है और उस अकॉर्डिंग आप आगे प्लान कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल गेट टू नो योर सेटिंग कैपेबिलिटी. 1 घंटे या 3 घंटे अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लेते हो तो बैठ के एक टेस्ट को पूरे फोकस के साथ देना इज ऑल्सो अ टिपिकल टास्क फॉर मैनी. सो आपको ये भी आपको पता चलेगा कि आप कितनी देर बैठ के आप अच्छे से टेस्ट दे पाते हो पूरे फोकस के साथ. सेकेंडली, आपको एक रोड मैप बनाना है, लेकिन रोड मैप मैंने आपके लिए ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है, वो आपको अभी वीडियो में आगे पता चल जाएगा. सो फर्स्ट 90 डेज में हम क्या करेंगे, हम विल बी लर्निंग ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स. एंड जो लास्ट में 2-3 महीने आपके पास बचेंगे, अगर आप 90 डे प्लान सितंबर तक भी खत्म कर लेते हो तो यू विल स्टिल हैव अक्टूबर एंड नवंबर. उसमें आपको क्या करना होगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लेना है, उनका एनालिसिस करना होगा और बस रिवाइज करना होगा. और ये तीनों चीजें आपको रिपीट मोड पे कंटिन्यू करनी होगी. सो व्हाट विल बी आवर टाइम टेबल. अब हम हमारा टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं. टाइम टेबल में आपको ऐसी 4 चीजें हैं जो आपको ऑन अ डेली बेसिस करनी है. अगर आप ये 4 चीजें रोज कर लेते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन वीआरसी सेक्शन. सो द फर्स्ट थिंग इज रीड 2 एडिटोरियल्स डेली एंड राइट देयर समरी इन योर ओन वर्ड्स. मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि मैं खुद भी ये चीज करता था. आई यूज्ड टू राइट
summary of daily editorials. दिस इज अनदर स्नैपशॉट फ्रॉम माई ओन नोटबुक, जहाँ पे मैं एडिटोरियल समरी लिखता था. मैं क्या करता था, आई यूज टू राइट इट इन पैराग्राफ फॉर्मेट में, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिया करता था. बट आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, आप 2 एडिटोरियल्स पढ़ो 20 मिनट्स में. विद इन 20 मिनट्स रीड 2 एडिटोरियल्स एंड 5-5 मिनट में दोनों की समरी लिख दो 6-7 सेंटेंसेस में बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में. दैट इज मोर देन इनफ. अब इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदे हैं. वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इम्प्रूव्स योर रिटेनिंग पावर एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड विच हेल्प्स इन आरसीज. सी आप है ना 2 एडिटोरियल पढ़ते हैं और फिर बिना देखे उसकी समरी लिखते हैं, तो आपकी एक तो रिटेनिंग पावर बढ़ती है. आपको पता चलता है कि आप कितना एक्चुअली रिटेन कर पा रहे हो और आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, उसको कितना समझ पा रहे हो. और ये दोनों ही चीजें आपको आरसी में हेल्प करती है. ऑलराइट. सेकेंडली इट इम्प्रूव्स योर जीके, जो आपका जीडीपीआई में काम आती है, और लिखते लिखते आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं, जो कि आपकी राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में काम आती है, जो कि ऑलमोस्ट हर आईएम कंडक्ट करवाता है. सेकेंडली यू नीड टू प्रैक्टिस आरसीज डेली. आरसी आपको पता है इट कैरीज द हाईएस्ट वेटेज इन कैट वीआरसी सेक्शन, तो ये तो आपको डेली बेसिस पे करने ही करने हैं. थर्ड, आपको पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, पैरा समरी और पैरा कंप्लीशंस डेली करने हैं. क्यों? क्योंकि लास्ट 3-4 साल से वीए का सेक्शन पूरा इन्हीं चारों में से आ रहा है. सो आपको ये तो करना ही करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपके लिए एक्सेल शीट बनाई है, उसमें मैंने आपको सारे टारगेट्स कि कितने आरसीज करने हैं, कितने पैरा जंबल्स करने हैं, वो सब मैंने उसमें डाल दिया है. तो उसके थ्रू आपको डेली आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, आपको उसमें डेटा फिल करना है ऑन ए रेगुलर बेसिस. एंड हियर इज अ क्लिप ऑफ द एक्सेल शीट. आप ये देख लीजिए और इससे समझ लीजिए कि आपको एक्सेल शीट कैसे यूज करनी है. So guys, here's the VARC Excel sheet which I have made for you and which will help you track your daily progress. Let me just quickly take you through this and tell you how you can use this effectively. And before I start, let me first tell you that it has taken me almost 3 to 4 days to compile all the data and make this Excel sheet in the best way possible, so as to make things really easy for you guys to follow. So use it and share with your friends as well, जो अभी इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, उनके साथ शेयर भी कर देना ये चीज़. And this sheet will be helpful for everyone, whether you are a working professional or a college student or a dropper or even a repeater can use this to organize their CAT preparation. So without any further delay, let me explain how you can use this and what are the targets that I have set for you. So first of all you can see first रो में मैंने आपको सारे डेज डाल के दे दिए हैं, डे 1 से लेके डे, टॉप रो में आपको दिख जाएगा डे 30 तक, एंड नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो डे 60 एंड डे 90 तक हमारा टोटल प्लान है. अब इसमें मैंने कैसे कैसे आपके लिए टारगेट सेट किए हैं वो आप एक बार समझ लो. देखो यार, सिंपल सी एक्सेल शीट है, यहाँ पे मैंने आपको टारगेट्स डाल के दे दिए हैं जो आपको ऑन ए डेली बेसिस अचीव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसा डिस्कस किया था, आपको 2 एडिटोरियल्स रीड करने हैं एंड उनकी समरी लिखनी है. तो फॉर एग्जांपल आपने डे 1 पे 2 एडिटोरियल रीड कर लिए, तो आप यहाँ पे 2 डाल दो. सेकेंडली, पहले जो मंथ है फर्स्ट 30 डेज में आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं आरसीज के, अज्यूमिंग 4 क्वेश्चन पर आरसी. तो कितने आरसीज हो गए? 2 आरसी. सिंपल सी बात है, मैंने क्या अज्यूम किया है कि एक आरसी में 4 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको 2 आरसी सॉल्व करवाना फर्स्ट मंथ में. तो आपको यहाँ पे मान लो, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने मान लो 2 आरसी सॉल्व किए, लेकिन उनमें दोनों में 6 क्वेश्चंस थे, दोनों आरसीज में, तो कोई इशू नहीं है. आपने 6-6 क्वेश्चन के 2 आरसीज किए हैं, तो यहाँ पे 12 लिख दो. आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आरसीज नहीं लिखना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दोस 2 आरसीज. पैरा जंबल का टारगेट आपका 2 है, फर्स्ट मंथ में आपने 2 सॉल्व कर लिए, ठीक है. ऑड वन आउट का आपका टारगेट 2 था, 2 आपने कर लिए, ठीक है, आपने यहाँ पे 2 लिख देना है. एंड पैरा समरी का आपका टारगेट था 2, यहाँ पे आपने 2 सॉल्व कर लिए, 2 लिख देना है. पैरा कंप्लीशन, चलो आपका पहला डे था, आपको बहुत जोश चढ़ा, आपने 2 की जगह 4 कर दिए, तो 4 यहाँ पे लिख दो. जितने आप करो उतने आप लिख दो, बस दैट्स इट. अब ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको दिखा देगा, इन सबको ऐड करके यहाँ पे 22 ये आपको अटेम्प्ट्स के सामने दिखा देगा. अब आपको टाइम टेकन लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, ये आप आदत डाल लो कि आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो एक बार अपनी घड़ी की तरफ देख लो, एक बार वॉच देख लो कि क्या टाइम हो रहा है, और जब लास्ट में आप ख़त्म कर लो तो भी एक बार टाइम देख लेना कि आपने कितना टाइम लिया है. तो फॉर एग्जांपल आपको पहला दिन था, आपको ये 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए. सो जस्ट राइट 120 मिनट्स हियर. और करेक्ट भी आपके ज़्यादा नहीं हुए क्योंकि पहला दिन था, तो फॉर एग्जांपल आपके इसमें 10 ही करेक्ट हुए हैं. तो अब ये आपको क्या क्या दिखा देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दिखा देगा आपका परसेंटेज. परसेंटेज इज सिंपल, यू हैव अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस एंड उसमें से 10 करेक्ट हुए हैं, तो 10 आउट ऑफ 22 ये आपको दिखा देगा. यहाँ पे 45% आपका आया है पहले दिन, ये आपकी एक्यूरेसी आपको दिखा देगा. सेकेंडली, एग्जाम एफिशिएंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. और इसका क्या मतलब है
इसका ये मतलब है कि अगर आप 120 मिनट्स में 22 अटेम्प्ट कर रहे हो, इट इज़ जस्ट अटेम्प्ट, ये एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ अटेम्प्ट दिखा रहा है, एक्यूरेसी तो आपको परसेंटेज दिखाएगा। तो 120 मिनट्स में आप 22 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जो एक्चुअल एग्जाम होगा अपना 60 मिनट्स का, उसमें आप कितने अटेम्प्ट करोगे वो आपको ये चीज़ दिखाएगा, एग्जाम एफिशिएंसी, विच इज़ सिमिलर टू योर स्पीड, कि आपकी वहाँ पे स्पीड क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 120 मिनट्स की जगह 90 मिनट्स कर देता हूँ, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर 90 मिनट्स में आप 22 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो 60 मिनट्स में आप 15 क्वेश्चन कर पाओगे। एक्चुअल जो एग्जाम होता है कैट, उसमें आप 15 क्वेश्चंस ही कर पाओगे। तो हमको इस एग्जाम एफिशिएंसी को एटलीस्ट 25-26 लेके जाना ही जाना है। वहाँ पे आपको VARC सेक्शन में 34 क्वेश्चंस में से 25-26 अटेम्प्ट करके ही आने हैं। और अगर बहुत डिफिकल्ट एग्जाम भी आ जाता है तो भी आपको एटलीस्ट 20-22 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके ही आना है। तो यही सेम आपको फॉलो करना है फर्स्ट मंथ में 30 डेज तक। अब सेकेंड मंथ में हम हमारी प्रिपरेशन को थोड़ा हायर लेवल पे लेके जाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 चेंजेस किए हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडिटोरियल्स तो अभी भी 2 ही लिखना है, यहाँ पे आपको 2 ही एडिटोरियल्स डेली लिखने हैं सेकेंड मंथ में भी, लेकिन मैंने आपका RC का टारगेट अब 3 कर दिया है। आई हैव रिटन 12 क्वेश्चंस अज्यूमिंग 4 क्वेश्चंस पर RC। मैंने अज्यूम किया कि 4 क्वेश्चन होंगे एक RC में, तो आपको 12 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आपको 3 RC सॉल्व करने हैं। और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी मैंने 3-3 कर दिए हैं सबके, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन भी अब आपको 3-3 करने हैं। प्लस आई हैव एडेड वन मोर थिंग, वो है FIJs, फैक्ट, इन्फ्रेंस, जजमेंट भी अब आपको 2-2 करने हैं एवरी डे इन द सेकेंड मंथ। एंड ये तो हो गए 2 चेंजेस। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस, अब आपको ऑन एवरी 7th डे आपको एक सेक्शनल टेस्ट लेना है और उसका एनालिसिस करना है। और एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना, तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर दैट एज वेल। ये हो गया हमारा सेकेंड मंथ का। सेकेंड मंथ में आपको एवरी 7th डे एक सेक्शनल टेस्ट लेना है, और आपके RCs वगैरह का नंबर भी इंक्रीज हो चुका है, और एक FIJs मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में अब हमारी प्रिपरेशन को हम एकदम टॉप लेवल पे लेके जाना है हमको। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग इन RCs, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट। अब मैंने 4-4 कर दिए, अब आपको 4 RCs डेली सॉल्व करने हैं, और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी अब आपको 4-4 सॉल्व करने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आप ये बैठ के 1-2 घंटे में सॉल्व कर लोगे। और थर्ड मंथ तक आते आते आपकी स्पीड भी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। ऑलराइट, और आर्टिकल्स अभी भी 2 ही रहेंगे। एंड सेकंड चेंज ये है कि मैंने यहाँ से FIJs हटा दिए हैं, फैक्ट, इन्फ्रेंस, जजमेंट हटा के मैंने ग्रामर क्वेश्चंस डाल दिए हैं। अब आपको डेली 10 क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर सॉल्व करने ही करने हैं। एंड दीज 10 क्वेश्चंस में इंक्लूड क्वेश्चंस लाइक सेंटेंस करेक्शन, और मे बी चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शंस, और मे बी फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब आपको करना है। एंड थर्ड चेंज इज, नाउ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ टेकिंग सेक्शनल टेस्ट। अब आपको एवरी 4th डे, now on every 4th day you will have to take a sectional test and analyze it. All right, and this is up to the 90th day. So guys, 90th day tak you will end up solving almost 300 RCs, and that is more than enough to build a strong foundation. So that's all about the sheet. And trust me guys, if you will use this regularly, you will automatically start feeling confident about your preparation going in the right way. When you will see your percentage and exam efficiency increasing day by day, you will always have the zeal to improve further. And even if it decreases on some days, at least you will have 2 parameters to give you the reality check on every single day, so that you can improve further in the upcoming days. So kindly use this sheet for your own benefit. सो आई होप आपको एक्सेल शीट अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टडी मटेरियल। हमने ये तो देख लिया कि हमको कितना कितना टारगेट्स है, कैसे कैसे हमको RCs करने, कैसे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन करने, कितने कितने, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि हमको करना कहाँ से है। तो स्टडी मटेरियल में मैंने RC को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट 60 डेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको सबसे पहले आपको RC 99 PDF पढ़ना है। RC 99 PDF बहुत ही अच्छा सोर्स है RCs प्रैक्टिस करने का। इसमें RCs 3 लेवल में दे रखे हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो इसमें 99 RCs हैं, वो आपके 30-40 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो बचे हुए 20-25 डेज हैं, उसको में आपको किसी कोचिंग मटेरियल से उठाना है, या फिर RC बाय सुजित कुमार, ये एक करके बुक है। इसका लिंक, डाउनलोड लिंक इन सारे स्टडी मटेरियल का मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट 30 डेज में आपको कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स के RCs करने, स्टार्टिंग फ्रॉम दी
लेटेस्ट वन जो कैट 2019 हुआ था वहां से स्टार्ट करते हुए आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है और वहीं से आरसी उठाने हैं। वीए के लिए आपको सबसे पहले आई वुड सजेस्ट वर्बल एबिलिटी बाय सुजित कुमार। ऑलराइट, और अगर इसके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं देन आप कोई सी भी कोचिंग का मटेरियल उठा सकते हो, और अगर यहाँ पे भी खत्म हो जाते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे, तो आप कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठा लेना स्टार्टिंग फ्रॉम दी रिसेंट वन। एंड ये तो रही बात कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर हम सीखे कहाँ से, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखे कहाँ से, तो सुजित कुमार इज द बेस्ट बुक इन माय ओपिनियन। ये आप उठा लीजिएगा, इसमें आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। एंड ये दो चीजें ऑप्शनल है, ग्रामर के लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लेना। एंड आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि प्लीज अवॉइड रैनन मार्टिन फॉर इंग्लिश ग्रामर। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। और आप अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो एज पर आर एक्सेल फाइल। आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द ग्रामर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ कोचिंग मटेरियल ओनली। एंड वोकेबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट, तो आप ये कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स विच यू टोटली नीड टू अवॉइड। अब वो क्या क्या है वो हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट रीड फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। देखिए, हम अगर इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं कोरा पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, और किसी भी टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते हैं, तो वो एक ही बात बार बार सबको यही बोलता है कि रीड 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 रीड। सब एक ही चीज बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो, साइंस की बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी की बुक पढ़ो, हिस्ट्री बुक्स पढ़ो, और पता नहीं क्या क्या पढ़ो। लेकिन देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। उनका रीडिंग में कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, इंक्लूडिंग मी। मुझे रीडिंग बहुत बोरिंग लगती थी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मत पढ़ो ये सब चीजें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। अब आप सोच रहे होंगे कि हर कोई तो बोलता रहता है रीड करो, और सर कह रहे हैं कि रीड मत करो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नहीं, वाह मोदी जी वाह नहीं बोलना है। रादर प्रैक्टिस 2 more RCs। See, this is the best tip anyone can give to you। देखिए, हमारा जो रीडिंग का पर्पस होता है, जो हमारा रीडिंग का प्राइमरी पर्पस होता है, हम रीड करते क्यों है, ताकि हम आरसी अच्छे से समझ पाएं और आरसीज को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। सो अगर आप आधा घंटा वेस्ट कर रहे हो रीडिंग में, और वो भी ऐसे रीडिंग में जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनका रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग साइकोलॉजी और साइंस, तो उससे बेटर है कि आप एक साइकोलॉजी और एक साइंस का आरसी सॉल्व कर लो। क्योंकि अल्टीमेटली हम रीड करते क्यों हैं, अल्टीमेटली हम रीड इसीलिए करते हैं ताकि हमारे लिए आरसीज इजी हो जाए। तो आप रीड मत करो, उसकी जगह आप आरसी सॉल्व कर लो। दैट विल ऑटोमेटिकली सर्व योर पर्पस ऑफ गेटिंग बेटर एट आरसीज। सेकेंड इज वाइल रीडिंग डोंट स्टॉप एवरी टाइम यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड। अब काफी लोग क्या करते हैं कि एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास कहीं पे भी एक ऐसा नया वर्ड आ जाता है जो जिसका मीनिंग उनको नहीं पता, तो वो वहीं पे रुक के पहले एक बार डिक्शनरी या गूगल चेक करने लगते हैं। तो ये मत करना, इससे आपकी रीडिंग स्पीड हैम्पर होती है, इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैम्पर होती है, आपकी स्पीड बन ही नहीं पाती इस चक्कर में। सो आई वुड सजेस्ट कि इसकी जगह ट्राई टू गेस इट्स कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। जब भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आप उसका एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करो, एक गेस करो कि शायद ऑथर ये कहना चाह रहा है तो इस वर्ड का ये मीनिंग होगा, और उसको हाईलाइट कर लो उस वर्ड को। और आपको फिर क्या करना है वोकैबुलरी के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग वर्ड लिस्ट फॉर वोकैबुलरी। अब काफी बंदे क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में एक वोकैबुलरी की नोटबुक बना लेते हैं और उसको फिर वो 2-4 दिन बाद देखते भी नहीं है। एंड इवन आई हैव डन दिस। आप ये क्लिप देखिए तो आप खुद समझ जाएंगे। एंड गाइज, ऐसा नहीं है कि ये मैंने नहीं किया, यू कैन सी इवन आई मेड अ नोटबुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग में लिख के, इवन आई यूज्ड ब्लैक पेन, ब्लू पेन, एंड बहुत अच्छे से लिखा था। और ये काम मैंने 2 दिन किया। आई रोट 25 वर्ड्स, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मेरी बन गई रफ कॉपी। सो आपने देख लिया होगा कि मैंने खुद ने ऐसा कर रखा है, बट ये मतलब ये लॉन्ग रन में इसको फॉलो करना बहुत ही टिपिकल टास्क है। तो ये आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू मेक अ नोटबुक आउट ऑफ इट। रादर आपको क्या करना है, रादर गूगल अबाउट द वर्ड, लर्न अबाउट इट्स मीनिंग एंड यूजेस, एंड सिंपली मूव ऑन। कोई भी वर्ड आपके पास आ रहा है उसको हाईलाइट करो। पहले शुरू में तो आप उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग गेस कर लो, और लास्ट में जब आपका आर्टिकल पूरा खत्म हो जाता है तो जितने भी वर्ड्स आपके पास नए आए हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, उनके मीनिंग को समझो, उनका यूजेस समझो, और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स समझो, एंड सिंपली मूव ऑन। उनको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अच्छे से उसके ऊपर 1-2 मिनट भी रिसर्च करोगे और फिर वो वर्ड आपके सामने आएगा कभी भी इन फ्यूचर, तो आप उसका मीनिंग गेस कर पाओगे। सो आई नो यू मस्ट बी टायर्ड बाय नाउ, बट प्लीज रुको जरा,
सबर करो। Just give me 1 minute and I will wind it up. So let me summarize everything for you. सबसे पहले आपको एक मॉक देना है, ये मैंने आपको बता दिया, इससे आपको आपका करंट स्टेटस पता चल जाएगा. सेकेंडली डूज में मैंने आपको बता ही दिया है, आपको आर्टिकल रीड करने हैं, आपको आरसी सॉल्व करने हैं एज पर दी एक्सेल फाइल. ये आपको एक्सेल फाइल के हिसाब से सॉल्व करनी है और आपकी एक्सेल फाइल में आपको डेली डेटा फिल करना है और उससे ट्रैक करना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू एग्जाम लेक्सिकन यूट्यूब चैनल एंड अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता देना, बिकॉज वीआरसी से रिलेटेड काफी सारे ट्यूटोरियल्स भी मैं इस पे अपलोड करने वाला हूँ. एंड डोंट्स में मैंने आपको बता ही दिया है, यू नीड नॉट रीड. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी जगह आप 2 ज्यादा आरसी सॉल्व कर लेना. एंड while reading don't stop for checking words every time, rather guess its contextual meaning. एंड लास्ट, आपको वोकेबलरी की नोटबुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो भी वर्ड्स आए उनके बारे में 1-2 मिनट रिसर्च करो एंड मूव ऑन. एंड स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, डाउनलोड लिंक एक्सेल शीट की और जितनी भी बुक्स हैं उन सब की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक डाल दिया है, लेकिन उसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है. इन केस यू आर स्टिल स्टक विद एनी डाउट्स रिगार्डिंग योर कैट 2020 प्रिपरेशन, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस. इनके भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं. एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम लेक्सिकन. ये वीडियो बनाने में सीरियसली बहुत मेहनत लगी है एंड आई हैव ट्राइड कि मैं आपके लिए सब कुछ सिंप्लीफाई कर दूं. तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अगर आपको पसंद आया तो कमेंट भी कर देना है, सो दैट आई गेट टू नो इफ इट वाज हेल्पफुल और नॉट. एंड हियर आर द लिंक्स फॉर DILR, क्वांट्स एंड द ओवरऑल स्ट्रेटेजी एज वेल. तो ये भी आप क्लिक करके देख सकते हैं. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे अहेड.